Today marks a milestone in our journey, a day of immense significance and pride, our Convocation Day. It is with utmost joy and gratitude that we extend our warmest welcome to each one of you gathered here to celebrate the culmination of your hard work, dedication, and perseverance. As we celebrate Pragati 2024, it is not just a culmination of your educational endeavors, but the dawn of new chapters in your professional journey. Did you know that the demand for psychologists is projected to grow by staggering 14% over the next decade, far faster than the average for all occupations? We are focused on producing as many counselors as possible to bridge the demand and supply gap. When we hear about the success stories of our alumni, many of whom have gone on established their own counseling practices, consultations, ventures, we feel proud and close to our mission, which is bring mental well-being skills to every household and foster a new generation of counselors. Our 2 lakh plus learners are testaments to the facts that we are on the right track. As we come together as a united Counsel India family, we reflect on the invaluable support, guidance, and mentorship provided by the esteemed alumni mentors, esteemed panelists, and the unwavering dedication of our gathered Counsel India graduates. Congratulations to the batch of 2023. May your future endeavors to be met with boundless success and fulfillment. Let's the celebration begins. So now I would like to invite and request our co-founder, Mr. Shivam Dikshit, and our honorable chief guest, Mr. Dr. Subhash Gupta, Chairman of Red Cross Society, and Dr. Sangeeta Chanu, Vice President of Helping Hands, to come and lighten up the lamp and initiate the convocation ceremony. So thank you so much, Subhash ji for being here. And how many of you know him? Like एक तो मैंने देख लिया सर जानते हैं. और कोई है जो सुभाष जी को जानता है? He's in my words he's called as पितामह of social service, है ना? सर भी इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे. तो पितामह जी आए हैं सोशल सर्विस के. इवन मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे सोशल सर्विस की बहुत ज़रूरत है. एंड सर इज़ वर्किंग विद गौशाला, ब्लड बैंक्स, हेल्पिंग अदर पीपल. और वैसे ही हमारे पास मिस चानू जी हैं. शी इज़ फ्रॉम हेल्पिंग हैंड. शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हेल्पिंग हैंड विद द सपोर्ट ऑफ IPS रॉबिन हिबू. आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ दिनों से हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. एंड फाइनली टुमारो इज़ द डे when we are starting our this thing center, physical center in Zero. So Zero, thank you. So Zero is the last village of India. आपने सुना है Zero के बारे में किसी ने? कहाँ है Zero? It's in Arunachal. After Zero, it's China. तो China border पे we have started one center with the very core and dedicated support of Robin sir. He is currently working as an IPS in Delhi Police. और कल से हमारा फाइनली वहाँ पे स्टार्ट हो गया. 1-1.5 महीने से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, टीम्स जा रही हैं, हेल्पिंग हैंड्स की टीम वहाँ पे सपोर्ट कर रही है. तो वहाँ पे महात्मा गांधी सेंटर है, वहाँ पे हमने अपना एक फिजिकल सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ से हम सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेंटल हेल्थ की फ्री सर्विसेज देते हैं. एक हेल्पलाइन नंबर होगा और उसमें हमारे काउंसिल इंडिया के लोग, हेल्पिंग हैंड्स के लोग, एक जॉइंट वेंचर है जिसमें मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी भी हमारा सपोर्ट कर रहा है. तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों की ब्लेसिंग से हम कर पा रहे हैं. और सपोर्ट है महानुभावों का जो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों में. और आज के इस कॉन्वोकेशन में द पर्पस ऑफ कमिंग अप विद अ कॉन्वोकेशन, देखो आपने कभी देखा होगा शायद जो एक्सपीरियंस लोग जो प्रोफेशनल्स हैं कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई होंगी. तो जो आज काफ़ी दिन से कॉलेज से दूर है उनको एक थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक तो फील हुआ ही होगा कि वापस से मेरी कॉलेज लाइफ की एक झलक मुझे देखने को मिली. तो मोस्टली कॉर्पोरेट कंपनीज या ऑनलाइन कंपनीज ये नहीं करती हैं. बट कुछ दिनों पहले मेरे को ये एक आइडिया है कि यार जितने भी बच्चे या जितने भी प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ कोर्सेज कर रहे हैं
एक ऐसा कुछ लेके आते हैं कि जहाँ पे सब लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, एक बार बात करें, एक थोड़ी वो कॉलेज लाइफ की थोड़ी फील एक दोबारा लें कि वी आर यंग। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मतलब प्रोफेशनल बन गए तो वापस से बचपन के दिनों में जा नहीं सकते, है ना। बचपन खत्म नहीं होना चाहिए, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली। और जिस दिन हम ज़्यादा ही डेड सीरियस हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके, देन प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग। सो द पर्पस ऑफ दिस कॉन्वोकेशन इज कि हम सबको मिलाएं, बिल्डिंग अ नेटवर्क, and that is why from this time we have started doing panel discussion. आज we'll be having 4 panels. Even some of our guest alumni have come. चौहान जी has come. मैंने देख लिया चौहान जी को। एक हमारे गौड़ साहब हैं। गौड़ साहब, where are you? I think he is sitting there. So अलग अलग जो भी हमारे प्रोफेशनल्स है, दिव्या is there. दिव्या, she is RJ in Radio City. तो ऐसे अलग अलग एरियाज से हमने एल्यूमिनाइज गेस्ट बुलाए हैं जिन्होंने हमारा कोर्स किया है, और वो किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको भी बताएंगी कि कैसे कैसे स्कोप्स निकल रहे हैं, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो किस किस एरिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो यही है पर्पस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। So I would request our honorable chief guest, Dr. Subhash Gupta sir, to address our gathering. जिस विषय को लेकर के आप समाज में आगे जाना चाह रहे हैं, अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो दूसरे को अच्छा नहीं रख सकते। और अच्छा होने से मतलब हम अपनी मन की स्थिति से अच्छे रहें। कई बार क्या होता है कि आदमी शरीर से अगर बीमार है तो लेकिन उसके भाव उसके चेहरे पर नहीं आते। वो दूसरे को बताता है मैं भी ठीक हूं, तू भी ठीक हो जा। आज काउंसिल इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं आयोजकों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया, और आप सबका भी मैं आभारी हूं जो 2 या 4 मिनट आप मुझे सुनेंगे। कोई अच्छी बात अगर मैं बता दूं तो उसको अपने पास रख लेना, अच्छी ना लगे तो उसको मत याद रखना। बिल्कुल चर्चा हो रही है मेंटल हेल्थ की। कई बार स्थिति ऐसी आती है, जो चीज प्यार का हाथ सिर पर फेरने से मिल जाती है ना, वो बहुत सारे पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलती। जिन घरों में उन दिनों राशन की व्यवस्था नहीं थी, और जब हम लोग राशन देने के लिए वहां पहुंचते थे तो लोग इतनी दुआएं देते थे कि अगर आज उन दुआओं की गणना की जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारी दुआएं ईश्वर ने उनके द्वारा हमें ही दे दी। लड़का हो गया तो भी छोड़ गए, लड़की हो गई तो भी छोड़ गए, अनवांटेड हो गया तो भी छोड़ गए। लेकिन ये बताओ उस बच्चे ने क्या कसूर किया था जिसको छोड़ गए? तो अब ये जो टीम यहां बैठी है, मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि समाज में कुछ बच्चे, कुछ वृद्ध ऐसे हैं, उनको केवल आपके प्यार की आवश्यकता है। उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे अगर आपने एक बार पूछ लिया, अम्मा तू कैसी है? बस। बोलने को तो बहुत देर तक इस पर बोला जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्यार बांटो तो प्यार मिलेगा। और वही एक बात शुरू से लेकर के और आखिर तक और अंत में यही है कि भाई ना प्यार कभी मरेगा, और प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। प्यार करने में कोई पैसा नहीं खर्च होता।
सबको आपके प्रेम की, प्यार की आवश्यकता है, इसको बांटो। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में प्रगति के पथ पर चलते रहें, पीछे मुड़ करके ना देखें। भला उसका करने की सोचिए जिसको आप नहीं जानते। जिसको आप जानते हैं उससे कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये जब भी मुझे मिलेगा मुझे नमस्ते करेगा, मुझे झुक के नमस्ते करेगा, हैं? जब मैं निकलूंगा मुझे साइड दे देगा। उसका करो ना जिसको आप नहीं जानते। और जितना आप कुछ करोगे ना उससे कई गुना आपको वापसी मिलेगा। ईश्वर भी आपको प्यार करेगा, समाज भी आपको प्यार करेगा, परिवार भी आपको प्यार करेगा। और हम तो हैं ही सभी इसी काम के लिए। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। जब भी आप याद करेंगे आप अपने साथ पाएंगे। धन्यवाद। Now I would request our guest of honors to address the gathering, Ma'am Sangeeta Chani. Hare Krishna to everyone. I'm here presenting Helping Hand. Helping Hand is a charitable non-profit, non-government organizations in India by serving Northeast official, IAS, IPS, IRS, lawyer, entrepreneurs and artists. Special Commissioner Robin Hibu is the President of Helping Hand and I'm the Vice President of Helping Hand. We have 25 co-members and volunteers inside country and outside country. So everywhere, whoever needs, we reach there. We have CSR partner like ALS, Akas, Baziram, Avanti, Indigo, Vistara, AIMS, India, Food Banking India, Muthoot Finance, BKT, Yonex, Sunrise, S3C Ibudo Margin and Naga Kitchens. With this, with the help of these CSR angels, we can help. We help our people. Like we help everywhere where they need, like providing food, providing medications, certain accidents, we provide blood, we do medical camp in the border of every state in Northeast. We do counseling, education counseling, career counseling, stress counseling, family matters, single moms matters, ladies who are already in GP roads, like having a problem, where to give their kids, like when the kids are grown up, they don't want ki inki bacche bhi inki tarah ho, so they used to come down and ask for an help. So we guide them, we help them to protect their kids, So lots of things we are doing, and above that we are empowering all those UPSC coaching center scholarship for 7 states, and sport diets we provide sponsorship, and IIT NEET coaching sponsorship, Northeast Orphan Girl sponsorship, awareness campaigns and social media forum, crimes, labor laws, harassment, SOS, reach at mechanisms, sending dead bodies of Northeast to states, Indigos and Vistaras is helping us. One time what happened is, like, people who die here, as our Hindu dharma,
we cannot burn our Lawari's body ऐसे ही ले जाकर नहीं कर सकते थे. So one of the brother from Punjabi Bagh, he's a Punjabi, he gives this place to burn our people there. So Lawari's नहीं हुआ उसी दिन से, and may his soul be in peace. जब कोरोना हुआ था तो we lost our angel, that person. Above that, because of Indigo and Vistara, बहुत सारे माइंड, बहुत सारे फैमिली जो आखिरी जो उनका जो शरीर है वो देखने को जो नहीं मिलता है वो देख पाया है. सो लाइक वी आर सो थैंकफुल टू इंडिगोज एंड बिस्तरा ऑल्सो. And even Muthuts and all, they provide food during the time of Corona. We provide foods everywhere. हर जगह जा जाके हम जिसको खाने की ज़रूरत है हम देने जाते थे. So even Delhi police are also helping. So my brother Robin Hibu is the hero. Like I said, see, I'm a filmmaker, so I can describe only in movie style. He is just a Bahubali and he's Katappa too. Like we are only the part of the characters of the movies which we are trying to help him when he need. Like for example, we have different, हर जगह का अलग अलग वो रहती है. जैसे कि आई एम इन रजोकरी एरिया में कुछ भी क्राइम होती है, देन आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई विल गेट कॉल्स फ्रॉम द डेली पुलिस और आई विल गेट कॉल्स फ्रॉम द रॉबिन हिबू. देन वी रश देयर एंड वी फेस द प्रॉब्लम. बिफोर वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक जो बॉडी टच करते हैं रास्ते में भी, bad touch, whatever, and they used to call us Chinky, Momo, whatever, they used to call us lots. हमारी मतलब अपना नाम होता ही नहीं था कुछ टाइम पहले. When I come here as a student, I was so happy, like, oh my God, I'm going to Delhi. I was thinking Delhi must be something very different. When I was in Manipur as a student, I will keep dreaming every day Delhi as when I just reached to railway track, oh my God, I was scared and like it was different. But I start studying, then I faced lots of problems. During the time of my student also, I faced lots of problems. But I keep on learning and I keep on trying to interact with the local people, so they understand us. Before they was not able to accept us as an Indian because of our face. Even though people don't know that there is Manipur, there is Mizoram, Arunachal and Nagaland in India. So nowadays they accept us, they like us, they know our sincerity, they know our purity. So we are very thankful to even mainland Delhi, like everywhere they accepting us and inviting us everywhere. And again, like we get lots of support from Delhi-like peoples, supporting with the monies and with the helps of small things, like when we have problem. So this is a thing what Helping Hand is, and this cannot be success without this hero Robin Hibu. He's a special commissioner of Delhi right now, and अगर उसकी तरह कुछ और ऑफिसर निकलते ना, शायद इंडिया में कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं. कोई बहन को किसी पति से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. आई एम अ सिंगल मॉम. आई नो हाउ आई फेस दिस वर्ल्ड, एंड माई when I come out first time as helping to someone, like people used to say like इसका तो she's single, she's still laughing, अच्छा ड्रेस पहनता है, this and that. One day I literally cried, and I cried, and my brother saw, and my brother said, संगीता listen, जिस पेड़ में फल उठता है ना, फल होता है ना, वहाँ पे पत्थर फेंकता है. So don't cry, keep going, I'm with you. So till now I'm going with him, and I learn a lot in my life. And girls especially, you need to be very strong. You need to be very strong always. I really don't want to see a very weak lady in my life. Please be strong and face day by day. Teach your son also how to behave to girls, or how to behave to your daughter, or how to behave to society's women. Don't only we are the changers, because कोई भी लड़का हो, बच्चे हमारी होती है.
So we are the mothers, we have to be strong. Thank you so much. So now we'll start with the certification distribution. So once again, thank you, Shubhas ji and Sangeeta ji for your beautiful words. बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. आई होप बाकी जो जितने भी हमारे गेस्ट्स हैं आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें ली होंगी. और जो लोग भी या जो हमारे लर्नर्स हैं, ऑल दोज हु वांट टू हेल्प और बी एसोसिएटेड विद देम या एज अ वॉलंटियर या किसी भी तरीके से आप रेड क्रॉस या हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनसे कर सकते हैं. दे वुड लव टू जॉइन यू और बी एसोसिएटेड विद यू. मना कोई नहीं करेगा, बाकी हम तो हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है. सो मूविंग फॉरवर्ड, टुडे आई विल टॉक अबाउट द स्कोप. आई होप हम सब स्कोप के बारे में जानते हैं. मेंटल हेल्थ में स्कोप कितना है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए है. आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? कभी कुछ पढ़ा हो, कभी कुछ देखा हो, कुछ समझा हो कहीं से? एनीवन? लेट अस कीप इट मोर इंटरैक्टिव एंड रादर देन मी ओनली स्पीकिंग मच, बिकॉज मोस्टली सेशंस में तो मैं बोलता ही रहता हूँ. आज भी मेरे से ही बुलवाओगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा. ओके, जोक्स अपार्ट. सो स्कोप में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है मेंटल हेल्थ का? आपने कभी देखा है? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर ऑफ अ फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री. जैसे कि मैम कह रही थी कि लड़कियों को स्ट्रांग होना है या फीमेल्स को स्ट्रांग होना है, तो पहले ही मेंटल हेल्थ में फीमेल्स का काफ़ी दबदबा बना हुआ है. इवन आर लर्नर्स, 85% ऑफ आर लर्नर्स आर फीमेल्स. दिस इज़ वेरी इनसाइड, 85%. तो इसका मतलब ये है कि मेल्स को थोड़ा बच के रहना चाहिए. काफ़ी काउंसलर्स हमारी फीमेल्स हैं, और वैसे भी वो एक बॉर्न काउंसलर्स मानी जाती हैं. पैदा ही वो एडवाइसेस के साथ, मेरी वाइफ भी है, वो मुझे पूरे दिन काउंसलिंग करती रहती है. तो अब ये जो हमारे काउंसलर्स हैं जो अब प्रोफेशनल्स बन गए हैं, इन्होंने सर्टिफिकेट और ये डिप्लोमा और ये जो कोर्स किया है, उसके बाद आई एम श्योर काफ़ी कुछ आपको और अपनी स्किल्स में आप इन्हांस कर सकते हैं. नाउ लेट अस कम बैक टू स्कोप. सी मैं मोस्टली अपने पॉडकास्ट में, वीडियोस में या कॉलेजेस में या जहाँ भी मैं जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ, वहाँ मैं इन स्कोप्स की बात करता रहता हूँ बच्चों के साथ, यूथ के साथ. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट कि रिसेंटली हम जिस सिचुएशन में हैं, आप सबको अपनी पॉपुलेशन पता है इंडिया की कितनी है? 1.4. ओके, 145 CR, 150 CR के आसपास ही है. मतलब जो लेटेस्ट डेटा मैंने देखा था 145 क्रॉस्ड हो गया है. So we are very rapidly growing in all the areas. टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ भी, हमारी ह्यूमन ग्रोथ भी बहुत बढ़ रही है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत कितने लोगों को है? अगर उस डेटा को हम काउंट करें तो इट विल कम अराउंड 70 to 80 CR. ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैं साइकेट्री, मैं मेडिकल की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा. आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट मेंटल हेल्थ एज अ होल. आपको पता है मेंटल हेल्थ में कितने एरियाज हैं टोटल? आप सब कोर्स कर चुके हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फैमिली, पेरेंटिंग. There are 110, 110, और हम एक ही चीज़ पर अटके रहते हैं, दैट इज साइकोलॉजी. कि हमारा ध्यान सिर्फ साइकोलॉजी पे है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं.
क्या सभी को हम साइकोलॉजी करवा देंगे सीधा? आप एक बात बताओ, अगर पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में सिर्फ सर्जन ही आ जाएं तो ना तो नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ओपीडी वाले की ज़रूरत पड़ेगी, ना फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगी। सब आएंगे सीधा हाथ काटेंगे और टाँके सिल देंगे, बस हो गया काम। सो मेडिकल इंडस्ट्री में भी अलग अलग एरियाज है ना, जैसे कि आप हड्डी टूटी है तो ऑर्थो के पास जाना पड़ेगा, स्किन के रिलेटेड अगर है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक है, गाइनो है, ऐसे अलग अलग एरियाज है ना। इन द सेम वे वी हैव टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में भी अलग अलग एरियाज हैं, जैसे क्लिनिकल है, साइकियाट्री है, स्पोर्ट्स है, क्रिमिनल है, मिलिट्री है, ये अलग अलग एरियाज पे हमारे मेंटल हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं। ये तो हमारी स्कोप होगी। अब जब मैं बोलता हूँ कि 70 CR पॉपुलेशन ऐसी है, ये बंद करो, ये बंद करो। 70 CR पॉपुलेशन ऐसी है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या हम ये जानते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कितने? जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर आई थी पहले जॉली LLB, जिसमें बोला था कि लॉयर्स की बहुत कमी है। आपको पता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कितने हैं? एनी रैंडम नंबर? 10 लाख, ओके। और एनीवन? नॉट इवन इन लैक्स, ओके। अगर हम सब कुछ मिला लें, जैसे अगर हम साइकेट्रिस्ट भी मिला लें, साइकोलॉजिस्ट भी मिला लें, काउंसलर्स भी मिला लें, हीलर्स भी मिला लें, कोचेस भी मिला लें, सब कुछ ऐड भी कर लेते हैं, तो भी हम 6-7 लाख तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे। एक डेटा कहता है कि ऑन एवरी 1 लाख पॉपुलेशन, हर 1 लाख की जनसंख्या में हमें 3 साइकोलॉजिस्ट चाहिए, 3 प्रोफेशनल चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए। और हमारे पास आज के टाइम पे 0.3 है, सॉरी 0.7 है, करेक्ट। 2.3 हर 1 लाख पे कम है, और हम 150 करोड़ हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है 7-8 लाख काउंसलर इनफ है 50-70-80 करोड़ लोगों को की समस्याएं सॉल्व करने के लिए? नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मतलब चलो हमने समझ लिया कि लोग कम है, बट ये लोग ज़्यादा कैसे होंगे? लोग अच्छे कैसे होंगे? एक प्रॉब्लम आती है एजुकेशन एंड सीरियसनेस टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। अगर एक बंदा MBBS कर ले और उसे स्टिच लगाना ना आता हो, क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो बच्चे पास आउट होके निकल रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स, अब जैसे हम बहुत बोलते हैं कि MA इग्नू से कर लो, इग्नू से कर लो। इग्नू एक बहुत बड़ा, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डिग्रीज कराता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कराता है। बट कितने बच्चे इग्नू के पास आउट होके, उनका माइंडसेट ऐसा है कि अब मैंने इग्नू से पास आउट हो गया हूँ, अब मुझे एग्जैक्टली क्या करना है मुझे पता है, या मुझे एग्जैक्टली किस इंडस्ट्री में जाना है, कैसे जॉब लेनी है, किसका पैकेज जाना है। कितने हमारे ऐसे फोकस्ड स्टूडेंट्स हैं? बहुत ही कम। तो ये जहाँ यूनिवर्सिटी से देख लो आप, बच्चे बैचलर्स करते हैं साइकोलॉजी में, बाद में जाके कोई HR कर लेता है, कोई MBA में चले जाता है, कोई फाइनेंस प्रोफेशनल बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली चलती जाएगी, एंड दैट इज़ द रीज़न NEP के आने के बाद काफ़ी बदलाव हुआ। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी जो लेटेस्ट वर्जन है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस। अगर आप विकसित भारत 2047 का बुकलेट पढ़ोगे तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कवर है। क्या आपने हेल्थ केयर बिल पढ़ा है कभी? हेल्थ केयर बिल 2022 किसी ने कभी सोचा हो? RCI पढ़ा है? RCI एक्ट 1992 पढ़ा है? किसने RCI एक्ट पढ़ा है 1992? ये सोच रहे पूछ लेगा, ये फिर फंस जाएंगे। नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने RCI एक्ट 1992 पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा। ये प्रॉब्लम है। अब आप सोचो, हम इसी इंडस्ट्री में हैं, इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बट हम इस इंडस्ट्री के लॉज नहीं जानते। मतलब इट इज़ लाइक कि एक पुलिस वाला बंदा बन गया, बट उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल और लीगल्स नहीं पता, तो वो कैसा पुलिस वाला बने? एक लॉयर बन गया, बट उसे संविधान नहीं पता। तो ऐसे ही हम एक साइकोलॉजिस्ट बन गए, बट हमें लॉज नहीं पता। तो मेरा सजेशन ये है कि आज आप पहले तो जाके ना ये लॉ पढ़ें। 3 लॉ ऐसे हैं हमारे जो आपको पता होने चाहिए। RCI एक्ट 1992, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, एंड द लास्ट एंड द लेटेस्ट and the most important for mental health professionals, that is healthcare bill 2022, page number 27 because 27th पेज नंबर पे ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के बारे में बताया गया।
and we are under behavioral community, behavioral sciences. अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम किन किन एरियाज पे काम कर सकते हैं. मेरे टेबल पे ना मेंटल हेल्थ की कॉपी रखी है फिलहाल में, तो आपको पता चलेगा. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन एरियाज को पढ़ो. आप जब तक खुद ही नहीं जानोगे, अगर अच्छा एक बात बताओ, कल को कोई आके बोलेगा कि आप काउंसलर बन गए, कैसे बन गए जी? किसने बना दिया आपको काउंसलर? पूछ सकता है कोई? क्या आपको हमारा भारत का कौन सा संविधान सपोर्ट करता है काउंसलर बनने के लिए? आपने अगर कोई टर्म लगाई है अपने आगे, नाम के आगे काउंसलर, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लॉ के तहत लगाई है? कौन सा बिल ऐसा निकला है जो आपको ये चीज़ बताता है? हेल्थ केयर बिल को लाने का पर्पस ही यही था कि पहले क्या होता था पता है, कोई भी 2 किताब पढ़ लेता था वो काउंसलर बन जाता था. संदीप महेश्वरी की 4 वीडियो देख ली वो काउंसलर बन गया. कोई सत्संग अटेंड करके आ गए, मैं तो जी काउंसलर बन गया. इस तरीके के काउंसलर्स सोसाइटी की हेल्प ना करके डैमेज ज़्यादा कर रहे थे. आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग, जब हमने 2016 में जर्नी स्टार्ट करी थी, 2016 में जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते गए जो हमारे साथ काम करना चाहते थे कि हम प्रोफेशनल्स हैं और हम आपके साथ काम करेंगे. उनसे पूछूं कि आपने क्या किया है. आई एम अ वेरी बुक रीडिंग पर्सन, आई लव रीडिंग बुक्स, और मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं, सो आई थिंक आई एम द बेस्ट. मैं अपने सारे फ्रेंड्स की मदद करता हूँ. तो आप सोचो कि जो बंदा सारे फ्रेंड्स की मदद कर रहा है वो अपने आप को काउंसलर कंपेयर कर रहा है. वो सोचता है कि मैं तो काउंसलर बन गया. इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर बिल गवर्नमेंट लेके आई थी. ये उस बिल की कॉपी है, आप इसको पढ़िए. मैं इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ता हूँ पेज नंबर 27 से, कि हम किन किन एरियाज़ में काम कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को नहीं पता होगा ये कि आप क्या क्या कर सकते हैं. अब जैसे आप ये देखिए, बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल, ये साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल को कहा जाता है. और हमारे एरियाज जो हैं साइकोलॉजिस्ट सबसे पहला, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द लॉ दैट एक्सेप्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कवर्ड अंडर RCI, क्योंकि इस बिल को RCI से अलग रखा गया. 99% मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को इस बिल के बारे में पता भी नहीं. किसी को भी नहीं पता कि करना क्या है. कोई भी स्टूडेंट कॉलेज से निकलने के बाद भी ये नहीं जानता कि मेरा अधिकार क्या है. अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, मैं किस लॉ के अंडर जाता हूँ. बच्चे कंफ्यूज हैं. इग्नू के बच्चे पास आउट होते हैं, उन पर कुछ और लग जाता है. जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे पास आउट हैं उन पर कुछ और होता है. जो RCI से पास आउट होते हैं उन पर कुछ और लगता है. अब वहाँ पे RCI में सिर्फ MPhil होती है. अब RCI इज़ फॉर रिहेबिलिटेशन, RCI इज़ फॉर क्लिनिकल. तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी में बहुत कन्फ्यूजन है. सो वी नीड कि आप इस बिल को पढ़ो. मेरा यही पर्पस था, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि आप इस बिल को पढ़ो. इस बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, इसमें क्या क्या एरियाज़ हैं. अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बिहेवियर एनालिस्ट की एक पोजीशन है, इसमें लिखा है इंटीग्रल बिहेवियर हेल्थ काउंसलर, इसमें लिखा है हेल्थ एजुकेटर एंड काउंसलर्स इंक्लूडिंग डिजीज काउंसलर, डायबिटीज़ काउंसलर, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, सोशल वर्कर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर, HIV काउंसलर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट वर्कर. इतने सारे एरियाज़ गवर्नमेंट लेके आने वाली है. तो हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कितने एरियाज़ आने वाले हैं. HIV काउंसलर, डायबिटिक काउंसलर, आप देखिए जो हमने सोचा भी नहीं हो कि ऐसे ऐसे एरियाज़ भी आगे चल के आ सकते हैं. अगर हमें पता होगा तो ही तो हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे. इवन इसीलिए हम अपने सारे कोर्सेज में, टॉक्स में इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि आने क्या वाला है, या होने क्या वाला है, या चल क्या रहा है. आधे से ज़्यादा लोग तो हेल्थ केयर बिल ही नहीं जानते कि एलिट हेल्थ केयर बिल है क्या. नहीं पढ़ता कोई भी, कानून किसी को पढ़ना पसंद नहीं है. बट अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होकर लॉ नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री में काम करना. राइट. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि अभी तक क्या है. अब जैसे MEPSC है, स्किल इंडिया का एक पार्ट है, ठीक है. स्किल इंडिया के एक सेक्टर स्किल काउंसिल है MEPSC. अब MEPSC 2 जॉब रोल्स ऐसे क्रिएट करती है, जैसे कि हो गया हमारा एक एजुकेशन काउंसलर, एकेडमिक एंड एजुकेशन काउंसलर, और एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप. 2 टाइप के रोल्स देती है. बाकी उन्होंने फैशन स्पेशलिस्ट, कोई मेकअप अगर अपना वो सैलून खोलना चाहता है उसके लिए, कारपेंटर, प्लम्बर, सबके लिए उन्होंने अलग अलग एरियाज़ बनाए हैं और सबको सर्टिफाई कर रहे हैं एज अ स्किल बॉडी. तो अभी तक तो एजुकेशन काउंसलिंग में उन्होंने, एकेडमिक काउंसलिंग में दे हैव सर्टिफाइड. तो MEPSC के सर्टिफिकेट के बाद भी काउंसलर्स बन रहे हैं. अब नाउ अगेन है क्लैश कि अगर कोई बच्चा कॉलेज से निकल के आया और कोई बच्चा MEPSC के थ्रू आया है तो उनमें क्या डिफरेंस होगा.
क्योंकि वहाँ से भी अब सर्टिफिकेशन लेके बच्चे काउंसलर्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और हमें समझना चाहिए। अगर हम इनके गाइडलाइंस जान लेंगे तो ही हम इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में एक्टिवली काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो क्या क्या टाइप के स्कोप्स होते हैं। अब जैसे 2 टाइप के स्कोप मेजरली हम अपने बच्चों को बताते हैं, एक होता है जॉब और एक होता है वेंचर, कि या तो मैं जॉब करूं या मैं अपना एक वेंचर स्टार्ट करूं। तो अगर मैं जॉब करता हूं तो फिर एक क्वेश्चन है कि किन किन एरियाज़ में मैं जॉब कर सकता हूं। या तो मैं स्कूल में जॉब कर सकता हूं, क्लिनिक में जॉब कर सकता हूं, स्कूल में जॉब कर सकता हूं, कॉर्पोरेट्स में जॉब कर सकता हूं, NGOs में जॉब कर सकता हूं, सोशल वर्कर बन सकता हूं। उसके बाद में आजकल बहुत ही ये जो हमारे जो मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं या मेंटल हेल्थ के वेंचर्स जैसे होप क्योर है, माइंड पियर्स है, ऐसे काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ कॉर्पोरेट्स आ गए हैं जो कोर मेंटल हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं। मैं उनके अंदर एज ए काउंसलर काम कर सकता हूँ। इवन टेलीमानस, आपको पता है टेलीमानस के बारे में? टेलीमानस इज़ अगेन एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट जिसमें वो फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जैसे हमने हेल्पिंग हैंड्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है तो हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने वहाँ पे फिजिकल सेंटर स्टार्ट किया है। तो कहाँ से आएंगे काउंसलर्स उसमें, कौन सपोर्ट करेगा? हम पहले हमारे बच्चों को इनिशिएटिव देंगे, उनको बोलेंगे करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे ये भी एक स्कोप का एरिया। अब वहीं पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि यार मुझे जॉब नहीं करनी, मेरे को तो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर चले जाएगा। वो अपने वेंचर को रजिस्टर करेगा, उसको रजिस्टर करने के बाद उसमें लोग लाएगा, बिजनेस करेगा, मार्केटिंग करेगा, सारा जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप का तामझाम होता है वो सब करेगा। तो ये 2 एरियाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने कि अगर मुझे जॉब करनी है या मुझे वेंचर करना है या फिर मुझे दोनों काम करना है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर जॉब भी कर रहा हूँ बट साइमल्टेनियसली मैं अपना वेंचर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाने, जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। उसमें है कि हम मेंटरिंग का सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेंटरिंग का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरशिप। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप अब 1-on-1 मेंटरशिप भी, हमारे मेंटरिंग एक हमने नया डिपार्टमेंट ही फॉर्म कर दिया है, तो वहाँ पे आप मेंटरिंग भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रही है, कुछ जानना चाहते हैं, बिजनेस रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो मेंटरिंग टीम से आप कनेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से प्लेसमेंट टीम भी हमने फॉर्म करी है। इस मंथ हमने 3 बच्चे प्लेस कराए हैं, जो कि हमने हायरिंग पार्टनर्स का एक नेटवर्क बना के अपने बच्चों को वहाँ पे प्लेस किया। तो इस तरीके से भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज़ वेंचर सपोर्ट के लिए, जैसे आज भी आप सुनेंगे नेक्स्ट सेशन उनका ही एलुमनाई मेंटर जो अपना खुद का कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में कर रहे हैं। जैसे चौहान जी अपना सेंटर स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने हीलिंग का, इस तरीके से बाकी और भी लोग हैं, तो उनको भी आज हम सुनेंगे। तो उस एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं। ज़ीरो का प्रोजेक्ट में मैंने आपसे ऑलरेडी बात करी, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो बड़े कोर्सेज नहीं थे या फिर बहुत ही कोर कोर्सेज नहीं थे, तो हमने यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया। आई होप यू आर अवेयर अबाउट मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, है ना। मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम MBA प्रोग्राम लेके आए हैं साइकोलॉजी इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल MBA इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, MBA इन एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी एंड MBA इन बिजनेस साइकोलॉजी, एंड ऑल द प्रोग्राम्स आर बीन सर्टिफाइड, सपोर्टेड बाय UGC एंड अप्रूव्ड बाय UGC, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज इन पिक्चर। सो यूनिवर्सिटी के सब, क्योंकि हम तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, लॉ ही नहीं अलाउ करता। सो वी टुक द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी, वी डिड अ कोलैबोरेशन एंड नाउ वी हैव लॉन्च्ड 21 प्रोग्राम्स विद यूनिवर्सिटी, जिसमें MBA एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि अभी तक इंडिया में MBA HR में होता है, मार्केटिंग में होता है, बिजनेस में होता है, सब में होता है, बट साइकोलॉजी में कोई MBA नहीं कराता था। तो वी थॉट ऑफ कि हम MBA इन साइकोलॉजी के स्पेशलाइजेशन में भी लेके आए, इसलिए 3 प्रोग्राम्स अभी तक हमारे अप्रूव हुए हैं। टोटल हमने 11 प्रोग्राम्स का प्रपोजल दिया है UGC को, 3 हो गए हैं और बाकी अभी इन लाइनअप है। मे बी नेक्स्ट जो एजुकेशन ईयर आएगा हमारा, उसमें लेट्स सी कि क्या होता है। नेक्स्ट इज़ मन से मन तक करके एक पोर्टल हमने स्टार्ट किया था। आप में से किसी ने अटेंड किया अभी तक उसमें कोई सेशन, मन से मन तक? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, सो इस तरीके के सेशंस जिसमें हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं करते, हम वेंचर कैसे करना है, कोई नया कुछ अपडेट आया है, कुछ इंडस्ट्री का कुछ चल रहा है, इस तरीके से चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे। तो अभी तक ये वंस इन अ मंथ होता था, बट अब से हम इसे ट्वाइस अ मंथ करें, और धीरे धीरे अगर नीड होगी तो मे बी वी कैन कीप इट वंस इन अ वीक ऑल्सो, एक आधे घंटे पौने घंटे का सेशन, कि हमारे बच्चों को कुछ नया मालूम पड़े कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है।
और इससे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, तभी हमने ये स्टेप लिया है. नेक्स्ट इज़ इंक्यूबेशन सेंटर. वी आर इन अ प्लान कि हम आने वाले नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है जो कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी एंड विद द हेल्प ऑफ NSDC, अभी मिस्टर वेदमनी जी जो NSDC के जो CEO हैं, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम. सो एज अ ट्राई पार्टी, काउंसिल इंडिया, यूनिवर्सिटी एंड NSDC, वी आर प्लानिंग कि हम एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करें जहाँ पे जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको इंक्यूबेट करें, उनको सपोर्ट करें, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने का, फंडिंग प्रोवाइड करनी है, मेंटरिंग प्रोवाइड करनी है, कुछ भी देना है, तो एज एन इंटरनल इंक्यूबेशन सेंटर. मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होता है. कुछ एक दो ऐसी एडटेक कंपनी है जैसे मास्टर्स यूनियन है, वो उनका इंक्यूबेशन सेंटर है. तो दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग फ्रॉम द ऑफिस. तो यू विल बी गिवन ए डेडिकेटेड स्लॉट कि आप बैठो ऑफिस में, काम करो, प्लान करो, बिजनेस प्लान बनाओ, मेंटरिंग लो, प्रोफेशनल से बात करो, आइडिया इम्प्लीमेंट करो, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करो. तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेशन. तो इंक्यूबेशन सेंटर हम नेक्स्ट हमारे क्वार्टर का एक बहुत बड़ा प्लान है जो कि इसी कोर्स के पार्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स दैट वी आर प्लानिंग कि हम आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए वो लेके आएँ, प्रोफेशनल्स के लिए लेके आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारी कंट्री को दें, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ऑब्जेक्शंस बहुत आएंगे, ऐसे लोग भी बहुत आएंगे जो कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बहुत कम लोग समझते हैं. पहले बहुत ही कम समझते थे, आज थोड़ा बेटर कंडीशन है. ऑल थैंक्स टू कोविड. इन कंपैरिजन टू 2016-17, उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था, दैट टाइम पीपल यूज टू कॉल अस पागलों के डॉक्टर, सिंपल टर्म में. ये तो क्रेजी लोगों को ठीक करते हैं, इनसे दूर रहो, इनसे बात नहीं करना, ये कुछ जादू टोना कर देंगे, ऐसे हमें माना जाता था. बट थैंक्स टू कोविड, एंड कोविड में भी एक बहुत ही सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज सुशांत सिंह राजपूत डेथ. अगर हम बहुत ही स्पेसिफिकली कोविड में वो इंसिडेंट याद करें तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. बट यस, वो जो इंसिडेंट, हालांकि बहुत राइट, उसके बाद डिबेट स्टार्ट हुए, वेंचर्स आए. आज भी जितने भी जो वेंचर्स हैं जिनको फंडिंग भी मिली है अलग अलग जगहों पे, मोस्टली कोविड के बाद ही स्टार्ट हुई. तो ये है कि लोग अब इस जो कहते हैं ना लहर एक आती है, तो इस लहर का हिस्सा मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बने, सक्सेसफुल हो, अपने लर्निंग पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें. सिर्फ ये ना सोचे कि डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो गया. डिग्री सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता. मेन स्किल चाहिए, मेन चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी कैसे. वो एक, इवन मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एन इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई जस्ट thank you everyone once again for. Now I request all the graduates to come on the floor for the cake cutting ceremony, and I would request our guest of honors and Shivam sir for the cake cutting ceremony.